we are going to learn very interesting topic, that is nothing but classification of elements and periodicity in its properties. But before we actually kickstart the modern periodic table, let us know why it was necessary to classify these elements. Okay. Have you ever gone to a shopping mall? ठीक है, जब भी हम एक shopping mall में जाते हैं, what we see over there that all the things are kept at a particular position, a particular system is followed over there. ठीक है, जैसे ladies shoes, ladies sandals are kept at a particular corner, then some particular place is given to the gents shoes, then a particular place is given to the kids shoes, crockery is kept different, grains are kept different. Okay, so एक systematically differentiation किया जाता है, classify किया जाता है, so that it is convenient for us, it is easy for us okay, whatever we want to take, we should go in that particular direction and we take it. Okay, like similar only in 18th century there were around 31 elements. ठीक है, but later on in 1865 more elements came in forward. ठीक है, nearly about 61 elements, 63 elements were there in 1865. और इन सबको क्लासीफाई करना इसीलिए ज़रूरी था बिकॉज एक पर्टिकुलर एलिमेंट को ले लो, आप इंडिविजुअली उसकी स्टडी कर लो. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी पर्टिकुलर एलिमेंट, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, सो साइंटिस्ट थॉट दैट लेट अस ग्रुप दीज एलिमेंट्स टुगेदर इन such a way that the group should consist of the same chemical properties or physical properties. So यहाँ पर start हुआ कि किस तरह elements को classify किया जाए. Till now in 1865 there were around 63 elements. So it was really very necessary to classify these elements. So the very first step who took into classifying this element was Lavoisier. Lavoisier ने क्या किया? He classified the elements into metals and non-metals because he wanted to study the acidic and basic nature of the elements. But he could not classify those elements, those who were showing both the properties of metals and non-metals. So that failed. After that came Dobereiner. ठीक है. Now what does Dobereiner did? Dobereiner took 3 elements together. ठीक है, एक 3 एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बना दिया, 3 बंदों को साथ में लिया और उनका ग्रुप बना दिया और ये बताया कि जो एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम कॉर्नर्स पर जो 2 एलिमेंट्स थे उनका एटॉमिक वेट वाज नथिंग बट द मीन ऑफ दैट एलिमेंट विच वाज प्रेजेंट इन द बिटवीन. ठीक है, सो अगर मैं बोलूं कि ये मेरे 3 एलिमेंट्स है A, B और C, सो व्हाट डिड Dobereiner से? Dobereiner said that atomic weight of B was equal to atomic weight of A plus C divided by 2, which means that this B was nothing but the mean of atomic weight of B and C. ठीक है, this is the reason why this law was also called as Dobereiner triad, because he used 3 elements over here. Now let us see how he proved his triad law. He took 3 elements. Let us take an example over here. The first example I will take of lithium, sodium and potassium. ठीक है, lithium का atomic weight होता है 7, sodium is 23 and potassium is 39. करना क्या है हमको? A plus C divided by 2 will be equal to B. तो चलो देखते हैं होता है कैसे. 7 plus 39 divided by 2 which is equal to 46 by 2 which is nothing but 23, and 23 is the atomic weight of sodium. ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर. सेकेंड एग्जाम्पल वी विल टेक ओवर हियर. क्लोरीन प्लस ब्रोमीन प्लस आयोडीन. क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होता है 80 और आयोडीन का एटॉमिक वेट होता है 127. करना क्या है हमको? A plus C divided by 2 is equal to B, which is nothing but 35.5 plus 127 divided by 2 which is equal to 162.5 divided by 2. Divide करो, it will come 81.5 which is nothing but nearby equal to 80. ठीक है, so now what happened?
Dobereiner took three elements together and he proved that when we take three elements together, B was the mean of the atomic weight of the both the two elements who, with whom he was there. Okay, so now one more thing which he did, which nobody else have done till now, was that he was the first person to group according to the atomic law. ठीक है, एटॉमिक वेट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक वेट ही हैड ग्रुप्ड द एलिमेंट्स. ठीक है, मोर ओवर द सक्सेस वाज हियर के those three elements which he grouped together were showing the similar properties. ठीक है, जहां पर भी वो three elements को लेते जा रहे थे, those three elements were having the similar properties. Those three elements were showing the same chemical properties also as well as same physical properties also. ये एक और बड़ा सक्सेस रहा है इनका. फेलियर क्या था, डीमेरिट ये था कि सारे नोन एलिमेंट्स को वो क्लासीफाई नहीं कर पाए. He could not classify all the elements known at that time. All the 63 elements he could not classify. And second failure was that the rule was not obeyed in his rule. ठीक है, क्यों ओबे नहीं किया उन्होंने, सेम ग्रुप में ओबे नहीं करता था रूल. हियर वी कैन सी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है, अगर आप देखो तो क्लोरीन के पहले फ्लोरीन आता है. ठीक है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 19, isn't it? फ्लोरीन का एटॉमिक वेट 19 होता है. तो अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को कंसीडर करूं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को कंसीडर करूं, तो फ्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 19, क्लोरीन इज 35.5 एंड ब्रोमीन इज 80. तो मुझे करना क्या है, मुझे फ्लोरीन प्लस क्या करना है, ब्रोमीन डिवाइडेड बाई 2. तो वो क्या होगा, 19 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट 49.5. ठीक है, यहाँ पर 49.5 आ रहा है, पर क्लोरीन मेरा मीन है तो यहाँ पर 35.5 चाहिए था मुझे, जो नहीं मिलता है. तो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट फेलियर कि वो रूल को सेम ग्रुप में फॉलो नहीं कर पा रहे थे. नाउ आफ्टर डोबेरेनर, न्यूलैंड केम विद अ न्यू कंसेप्ट. ठीक है, व्हाट हिज कंसेप्ट वाज, he was a music lover. ठीक है, he loved music and as well as chemistry. So what did he do? He put both of them together and he came out with a wonderful and brilliant idea. He stated that every eighth element was having similar properties like that of the first element. Why he stated and what inspired him to state like this was that he said that there are 7 tunes of music. ठीक है, आप कहीं पे भी चले जाओ, there are always 7 tunes of music, सारे ग म प ध नी, and the 8th tune is the repeated tune of the first one. ठीक है, जो 8th tune होती थी, आप जब कभी भी 8th ट्यून बनाओगे या तो वो क्या होगी, फर्स्ट ट्यून का रिपीटेशन होगी, या आप 9th ट्यून बनाओगे तो वो क्या होगी, सेकंड ट्यून का रिपीटेशन होगी. सो लाइक दैट ओनली ही स्टेटेड दैट देयर आर 7 ट्यून्स, सा रे ग म प ध नी, 1 2 3 4 5 6 7. According to that, he arranged all the elements according to the tune of the music. ठीक है, but what was the criteria of arranging these elements over here? He arranged all the elements according to the increasing weight of the increasing atomic weight. ठीक है, डोबेरेनर ने भी यही किया था कि increasing atomic weight को accordingly he had classified the elements according to the increasing atomic weight. He had made the groups. Here also Newland has also done the same thing. He had also arranged all his elements according to the increasing atomic weight. But what he stated over here, that every 8th element which was coming at the 8th position, every element which was coming on the 8th position was showing the similar chemical as well as physical properties that of the first element. So here if the first element is lithium, तो lithium के बाद 8th element कौन सा आता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इट इज सोडियम. ठीक है, सो कहीं ना कहीं लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच कर रही थी. आफ्टर सोडियम विच एलिमेंट कम्स 8th ओवर हियर, 1 2 1 3 4 5 6 7 8, potassium. So like this, lithium, sodium and potassium, they were showing the similar properties. One more thing, if you look over here, that these three have the +1 valency. ठीक है, इन तीनों की वैलेंसी भी +1 होती है. Now one more thing which is missing over here, that फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, ठीक है, और क्लोरीन के बाद आर्गॉन आता है.
इजंट इट? पर वो यहाँ पर लिखा नहीं है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे, ठीक है। सो डायरेक्टली फ्लोरीन के बाद सोडियम आ गया। As he stated that every 8 element was showing the same physical and chemical properties as that of the first element, that was the reason why he named his law that Newland law of octave. Octave means art, ठीक है। So that was the reason why he stated the name octave to his law. Now one more thing which he showed over here, ठीक है, जिसके बारे में अब तक किसी ने भी बात नहीं की थी, was of periodicity. ठीक है, न्यूलैंड ने हमको क्या बताया? पीरियोडिसिटी बताई। व्हाट इज दिस पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी इज नथिंग बट रिपीटेशन ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर रिपीट होना। जैसे 40 मिनट्स का हमारा लेक्चर होता है, आफ्टर 40 मिनट्स अ बेल इज रिंग, ठीक है, आफ्टर 40 मिनट्स फिर से बेल बजती है, देन अगेन आफ्टर 40 मिनट्स फिर से बेल रिंग होती है, ठीक है। सो इन दिस वे what he stated that after a fixed interval of time, every 8 element was showing the same chemical and physical properties as that of the first element. तो यहाँ पर उन्होंने हमको periodicity बताई, that repetition of similar physical and chemical properties after a fixed interval of time was occurring over here, ठीक है। So that is nothing but periodicity. Now one more success was that कि ये success यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इन सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होगी, या तो फिर उसमें ग्रेजुअल डिक्रीज होगा या तो फिर उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन तीनों को अगर आप गौर से देखो तो इनका वैलेंसी जो होती है वो +1 होती है, बट एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करें तो सोडियम का एटॉमिक रेडियस लिथियम से ज्यादा है और पोटेशियम का एटॉमिक रेडियस सोडियम से ज्यादा है। सो हियर वी कैन से दैट एटॉमिक रेडियस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दैट इज नथिंग बट पीरियोडिसिटी ओनली, ठीक है। सो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में दे वर शोइंग द रिपीटेशन ऑफ दोस केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विच इज नथिंग बट पीरियोडिसिटी विच वाज शोन टू अस बाय न्यूलैंड, ठीक है। अभी इतना सब कुछ इन्होंने बता तो दिया हमको, देन ये क्यों फेल कर गए? व्हाट वाज द डीमेरिट? तो बच्चों सबसे पहला डीमेरिट जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, बट डायरेक्टली मैंने सोडियम लिखा है यहाँ क्योंकि उस वक्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। सो द वेरी फर्स्ट फेलियर इज दैट डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैस का डिस्कवरी हो गया। तो यहाँ पर 8th पोजीशन पर, ठीक है, 8th पोजीशन पर नियॉन आ गया, यहां पर भी 8th पोजीशन पे आर्गॉन आ गया, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ एवरी 8th एलिमेंट वाज शोइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। तो यहां पर नियॉन जो था वो सारी प्रॉपर्टीज शो करना चाहिए था लिथियम की तरह, बट इट वाज नॉट हैपनिंग। नियॉन वाज नॉट शोइंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक दैट ऑफ द लिथियम, ठीक है। तो नियॉन यहां पर लिथियम की तरह प्रॉपर्टीज कौन शो करता था? सोडियम, ठीक है। अगर आप इसमें देखो तो यहां पर 8th पोजीशन पे आर्गॉन है, ठीक है। सो आर्गॉन में भी क्या करना चाहिए? सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज शो करनी चाहिए दैट ऑफ सोडियम, बट इट वाज नॉट हैपनिंग ओवर देयर। पोटेशियम वाज शोइंग द सेम एंड फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लाइक दैट ऑफ सोडियम, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया? एवरी 8th एलिमेंट नहीं था, ये अब एवरी 9th एलिमेंट हो गया था। सो वी कैन हैव नेम्ड इट लाइक नोनिन और नोटेन, समथिंग लाइक दैट, पर वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज एज आई टोल्ड यू दैट देयर वर ओनली अराउंड 63 एलिमेंट्स दैट टाइम, ठीक है। तो ग्रेजुअल एक इंक्रीज हो रहा था, एक रैपिड इंक्रीज हो रहा था इन एलिमेंट्स, मोर एंड मोर एलिमेंट्स वेर कमिंग इन फ्रंट। सो डिस्कवरी ऑफ लाइटर एलिमेंट्स जो था यहां तक ही इन्होंने हमको क्लासिफिकेशन दिखाया, बट डिस्कवरी ऑफ हेवियर एलिमेंट्स होने लगा, ठीक है। सो हेवियर एलिमेंट्स को ये क्लासिफाई नहीं कर पाए यहाँ पर, ठीक है। सो दिस वॉज द रीजन वाई दिस थ्योरी वॉज नॉट दैट मच एफिशिएंट और इतनी ये काम में नहीं आई, बट यहाँ पर इन्होंने पीरियोडिसिटी हमको दिखाई, इसलिए न्यूलैंड गॉट और डेवी मेडल, न्यूलैंड को डेवी मेडल मिला। और किसने दिया ये डेवी मेडल न्यूलैंड को?
आपने दिया या मैंने दिया? रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है। So Newland got a Davy Medal from the Royal Society of London. Two more scientists came in front. Those were nothing but Mendeleev and Mayer. ठीक है, Dmitry Mendeleev and Lothar Mayer. Now this Mendeleev was from Russia and this Mayer was from Germany. ठीक है, दोनों अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करते थे। रशिया में मेंडलीव अपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर काम कर रहे थे, whereas Mayer was working on his classification of elements in Germany. But both of them were working with the same concept. ठीक है, दोनों का जो कंसेप्ट था मिशन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का वो सेम था, पर पब्लिश मेंडलीव का हुआ, मेयर का नहीं। द रीजन वाज दैट मेंडलीव ने जो प्रोसेस यूज किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में वो एक टैब्यूलर फॉर्मेट में किया, एक टेबल बनाकर किया, ग्रुप्स और पीरियड्स में क्लास एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, वेयर एज मेयर हैड क्लासिफाइड दी एलिमेंट्स, ही हैड शोड दी प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। उन्होंने ग्राफ को प्लॉट किया और वहां पर उन्होंने केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाई, उस तरह से उन्होंने क्लासिफाई किया। ठीक है, तो ग्राफ को इतना हम इंपॉर्टेंस नहीं देते, एक टैब्यूलर फॉर्मेट में अगर वो हमारे सामने तो पूरा पिक्चर एकदम सामने होता है, क्लियर होता है, कंसेप्ट भी क्लियर होता है। दैट वाज द रीजन कि मेंडलीव का हिट भी गया पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, और पब्लिश भी मेंडलीव का ही हुआ, पहले मेंडलीव का हो गया। ठीक है, तो ये लोथार मेयर का जो प्रोजेक्ट था, जो प्रोसेस था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, वो क्या था? इट वाज नथिंग बट ही जस्ट प्लॉटेड अ ग्राफ, एक ग्राफ प्लॉट किया था इन्होंने, विच वाज एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट। मान लो कि यहां मेरा एटॉमिक वॉल्यूम है एंड हियर इज माय एटॉमिक वेट। ठीक है, तो कुछ इस तरह का कर्व मिला था उनको। ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ मिला था। तो जहां पर मान लो अगर यहां पर और यहां पर एलिमेंट्स, ठीक है, मान लो यहां पर भी एलिमेंट्स है, यहां पर भी एलिमेंट्स है। उनको जिस तरह से एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे वो एक ग्राफ को प्लॉट करते जा रहे थे। ठीक है, तो यहां पर सपोज उनको मिला सोडियम, पोटेशियम एंड रुबीडियम। ठीक है, तो उन्होंने बताया क्या, दोज एलिमेंट्स विच वेर ऑन द एक्सट्रीम कर्व। ठीक है, जो पीक कर्व पे थे, ठीक है, दोज वेर ऑन द पीक कर्व, दे वेर हैविंग द सेम प्रॉपर्टीज। ठीक है, वैसे ही यहां पर फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन था, ये असेंडिंग लूप पर हो गए, स्टार्टिंग वाले लूप पर, है ना, स्टार्टिंग वाले लूप पर हो गए। सो दे वर हैविंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। व्हाट ही स्टेटेड, द एलिमेंट्स विच वर हैविंग द सिमिलर पोजिशंस, ठीक है, एलिमेंट्स विच वर ऑन द सिमिलर पोजिशन वर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो यहां पर जितने भी एलिमेंट्स मिलते जा रहे थे उनको, ही वाज स्टेटिंग के एलिमेंट्स विच वर हैविंग सेम पोजीशन वर हैविंग सेम प्रॉपर्टीज। लाइक जो एलिमेंट्स कर्व पर है उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो गई, जो एलिमेंट्स असेंडिंग लूप पर है उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो गई, जो एलिमेंट्स डिसेंडिंग लूप पर है उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो गई। मान लो कि अगर एक एलिमेंट यहाँ है, एक एलिमेंट यहाँ है, समझो एक्स यहाँ है, वाई यहाँ है, और समझो यहाँ पर एक एलिमेंट है जो है जेड। ठीक है, सो यहां पर उन्होंने ये बताया कि ये फिर ये एक्स वाई और जेड की भी प्रॉपर्टी सेम हो गई। ठीक है, जैसे जैसे एलिमेंट्स इनको मिलते जा रहे थे ये यहाँ पर पुट करते जा रहे थे और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बताते जा रहे थे। सो दिस वाज नॉट वेरी एक्सेप्टेबल। ठीक है, इतना मतलब कंफ्यूजिंग ग्राफ जो था इनका वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। दिस वाज द रीजन व्हाई मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ जो है वो पब्लिश हो गया। Let us see what was the Mendeleev's periodic table and what was the Mendeleev's periodic law. ठीक है, तो ये मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था। बट बिफोर मूविंग ऑन फर्दर लेट मी टेल यू वन थिंग कि मेंडलीव ने ऐसे बताया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल था ये इनको सपने में दिखाई दिया था, एंड ही गॉट अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड ही ड्रू दैट पिक्चर व्हाट ही सॉ इन हिज स्लीप, ही सॉ इन हिज ड्रीम, और क्विकली उन्हें सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर दिया। सो what he did, he wrote the names of those elements on the cards.
ठीक है, जो ताश के पत्ते होते थे उन पत्तों पर उन्होंने एलिमेंट्स के नेम्स लिखे थे और फिर उनको अकॉर्डिंगली उन्होंने अरेंज किया था। किस तरह से अरेंज किया था? ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वेट ऑफ द एटॉमिक वेट। ठीक है, और किसने किया था इंक्रीजिंग वेट ऑफ एटॉमिक वेट में? डोबेरेनर ने भी सेम ही किया था, न्यूलैंड ने भी सेम ही किया था। ठीक है, सो ही ऑल्सो फॉलोड दैट सेम प्रिंसिपल, ही ऑल्सो फॉलोड दैट सेम कंसेप्ट ऑफ न्यूलैंड एंड डोबेरेनर। ही अरेंज ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता था वो उस तरह से एलिमेंट्स को एक जगह देते जाते थे। ठीक है, मोर ओवर ही ऑल्सो स्टेटेड द पीरियोडिसिटी लाइक दैट ऑफ न्यूलैंड। ठीक है, न्यूलैंड ने भी हमको पीरियोडिसिटी के बारे में बताया। व्हाट वाज द पीरियोडिसिटी दैट न्यूलैंड हैड प्रपोज्ड? दैट एवरी एथ एलिमेंट वाज शोइंग द सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। मेंडलीव ने कहा कि हाँ मानता हूं, ठीक है, मैं भी मानता हूं कि पीरियोडिसिटी होती है, एलिमेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बट उन्होंने ये नहीं कहा कि कब करते हैं। ही टोल्ड दैट आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद में एलिमेंट्स पीरियोडिसिटी शो करते हैं एंड दैट पीरियोडिसिटी मीन्स दैट सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो अपीयर होते हैं, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एटॉमिक वेट, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एटॉमिक वेट। सो उनका लॉ क्या बन गया? उनका लॉ ये बन गया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट were nothing but the atomic function of the atomic weight, periodic function of the atomic weight. ठीक है, so the physical and chemical properties of an element were nothing but the periodic function of a atomic weight. ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ लिख देती हूँ। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज were nothing but periodic function of atomic weight. ठीक है, एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद में the elements were showing the same physical and chemical properties. ठीक है, so this was also stated by Newland, but he stated in the octave format, और इन्होंने बताया कि हाँ होते हैं एक फिक्स इंटरवल टाइम के बाद में। ठीक है, now this was the periodic table of Mendeleev. तो यहाँ पर आप अगर देखोगे अच्छे से, ठीक है, तो मेंडलीव ने क्या किया था, इन सारे एलिमेंट्स को जो क्लासिफिकेशन किया था जिस टेबल में, ही मेड सम वर्टिकल कॉलम्स ओवर हियर। ठीक है, जो वर्टिकल कॉलम्स थे वो 8 थे, सो ही नेम्ड देम एज ग्रुप्स। तो यहाँ पर कितने ग्रुप्स उन्होंने बनाए? 8 ग्रुप्स। he made 8 groups, if you can see 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 ग्रुप्स बना दिए और हर ग्रुप का एक सब ग्रुप बना दिया। ठीक है, लाइक यू कैन सी 1A 1B 2A 2B, जैसे डिविजन्स होते हैं ना हमारे स्कूल में, फर्स्ट A फर्स्ट B, सेकेंड A सेकेंड B, थर्ड A थर्ड B, फोर्थ A फोर्थ B, बिल्कुल उसी तरह से हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर सब ग्रुप बना दिया। ठीक है, 8 ग्रुप्स एंड पर्टिकुलर सब ग्रुप्स, और ये सब ग्रुप्स उन्होंने कहां तक बनाए? टिल 7th। ओके, ओनली टिल 7th यहां पर उन्होंने सब ग्रुप्स बनाए, 8th का सब ग्रुपिज्म उन्होंने नहीं किया। ठीक है, नाउ मोर ओवर ही मेड 7 periods also here. If you can see over here, 7 periods were made by him, and he put the elements now here. He started putting the elements according to the increasing weight of the atomic weight. ठीक है, इंक्रीज जिस तरह से एटॉमिक वेट होगा उस तरह उन्होंने पुट करते गए, और दिस वॉज हाउ ही मैनेज द एलिमेंट्स ओवर हियर। नाउ इफ यू कैन सी here there are 2 elements, here there are 2 elements, मतलब एक जो इस साइड है वो 1A में है, जो इस साइड है वो 1B में है। So here what he stated, the elements which were in the subgroups, ठीक है, जितने भी elements B में आ रहे हैं, यहाँ पर भी जितने भी elements B में आ रहे हैं, यहाँ पर भी जितने भी elements B में आ रहे हैं, ठीक है, those elements were showing similar properties। ठीक है, उन सबकी जो properties थी वो similar थी, means the elements which were coming in the subgroup were having similar properties, whereas the elements which were coming in the groups, ठीक है,
उन्होंने ग्रुप्स में जिन एलिमेंट्स को डाल रखा था, ठीक है, ग्रुप्स में पर्टिकुलरली उन एलिमेंट्स को डाला था जिनके ऑक्साइड्स बनते थे, ठीक है। वैलेंसी को यूज किया है यहाँ पर जो बहुत अच्छी बात मेंडलीव ने बताई है, वो सारे एलिमेंट जो एलिमेंट्स ग्रुप में डाल दिए गए थे वो वैलेंसी शो करते थे। जैसे कि यहाँ अगर मैं बताऊं, फर्स्ट ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते थे उनकी वैलेंसी 1 होती थी, जो सेकंड में उनकी 2 होती थी, जो थर्ड ग्रुप में उनकी 3 होती थी, जो फोर्थ ग्रुप में उनकी 4 होती थी, जो फिफ्थ ग्रुप में है उनकी 8 - 5 3 होती थी, जो सिक्स्थ ग्रुप में है उनकी 2 होती थी, देन जो सेवेंथ ग्रुप में होते थे उनकी 1 होती थी, और 8th ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी नहीं बताई उन्होंने। कहा कि यहाँ पर वेरिएबिलिटी हो सकती है, ये यहाँ पर वैलेंसी वेरिएंट हो सकती है, इन लोगों की वैलेंसी वेरिएबल रह सकती है। सो दिस वॉज ऑल्सो वन रीजन कि यहाँ पर उन्होंने नहीं बताया। देन ही हैड फॉर्म दीज ग्रुप्स बाय मेकिंग ऑक्साइड्स, ठीक है, जैसे Na2O, ठीक है, Na2O को उन्होंने यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स ऐसे कंपाउंड बनाते थे, जैसे K2O, ठीक है, जो भी ऐसे ऑक्साइड्स बनाते थे उनको उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में डाल दिया। फिर जो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो ऐसे ग्रुप ऑक्साइड्स बनाते थे उन्होंने उनको सेकेंड ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। सो लाइक दिस ही मेड ऑक्साइड्स एंड ही स्टार्टेड पुटिंग देम अकॉर्डिंग टू देयर वैलेंसी। उन वैलेंसी के हिसाब से उन्होंने सारे एलिमेंट्स को पुट कर दिया, ठीक है। सबसे बड़ा जो मेजर इनका सक्सेस रहा बच्चों, वो ये था कि उस टाइम 63 एलिमेंट्स नोन थे, ठीक है, when this periodic table was made. At that time 63 elements were known and all the 63 elements were present in this group, ठीक है, सारे 63 एलिमेंट्स इस ग्रुप में प्रेजेंट है। आई वुड लाइक टू टेल यू कि एनसीईआरटी में जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है, उसमें उन्होंने क्या किया है, पहले यहाँ पर जैसे मैंने फर्स्ट ग्रुप बनाया है, तो यहाँ फर्स्ट ग्रुप के पहले उन्होंने एक 0 ग्रुप लिया है और उस 0 ग्रुप में उन्होंने सारे नोबल गैसेस को प्ले किया है। बट मैंने यहाँ पर नोबल गैसेस नहीं लिखे हैं बिकॉज मैंने आपको मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल बताया है। ये जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, ये जो है एक रिवाइज्ड एडिशन है उसका, ठीक है। जब ये मेंडलीव ने एक्चुअल टेबल बनाया था तब नोबल गैसेस डिस्कवर ही नहीं हुए थे, सो यहाँ पर नोबल गैसेस लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज हाउ ही हैड क्लासिफाइड। जो सबसे बड़ा इनका हिट था, जो सक्सेस था, मैंने अभी बताया आपको कि ऑल द 63 एलिमेंट्स वे प्रेजेंट इन हिज टेबल। सेकेंड ये था कि उन्होंने ये बताया कि जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, वो कैसी है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट, ठीक है। जो भी इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक वेट का। मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो एलिमेंट की फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज जो हो रही थी वो रिपीट हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक रिपीटेशन हो रहा था एंड दिस डिफ्रेंसिएशन और जो रिपीटेशन था केमिकल प्रॉपर्टीज में या फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ द एटॉमिक वेट, ठीक है। थर्ड जो हिट रहा इनका वो क्या था, वो मुझे जहां तक लगता है वो ये था कि उन्होंने गैप्स दे रखे थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने एक गैप दिया था, सिलिकॉन के नीचे उन्होंने एक गैप दिया था। ये गैप उन्होंने इसलिए दिया था बिकॉज उनको पता था कि अरे हाँ, इसका एटॉमिक वेट ये है और इसके बाद जो एलिमेंट आ रहा है, एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आ रहा है उसका एटॉमिक वेट बहुत ही ज्यादा है। तो ही थॉट कि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा होगा जो आगे जाकर साइंटिस्ट डिस्कवर करेंगे, तब जाकर तो मेरा टेबल रॉन्ग हो जाएगा। सो व्हाट ही डिड, ही left a gap over there. Here also below silicon he left a gap over there. So this was also one of the major hit of this periodic table. Fourth hit जो था मेंडलीव का वो ये था कि इन्होंने जो प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर रखी थी, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज इन्होंने प्रेडिक्ट कर रखी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की, ठीक है, यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा और यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसकी जो प्रॉपर्टीज इन्होंने प्रेडिक्ट कर रखी थी। जैसे जो एलिमेंट यहाँ पर है एल्यूमिनियम के नीचे है तो इन्होंने इसको नाम दिया था इक्का एल्यूमिनियम, और जो एलिमेंट यहाँ सिलिकॉन के नीचे है उसको नाम दिया था उन्होंने इक्का सिलिकॉन, ठीक है, इक्का एल्यूमिनियम इक्का सिलिकॉन। तो जो भी प्रॉपर्टीज जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो या
इनका एटॉमिक रेडियस ले लो, तो इनके बारे में जो भी इन्होंने प्रेडिक्ट किया था, ठीक है, उस टाइम पर वो सारी प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसमें वो मौजूद थी। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं आपको बता दूं जो इका एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई थी वो आज के दौर में सारी प्रॉपर्टीज जो है गैलियम में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो इका सिलिकॉन की प्रॉपर्टीज इन्होंने बताई थी वो सारी प्रॉपर्टीज जर्मेनियम में प्रेजेंट। ठीक है, सो ये भी एक बहुत बड़ा इनका हिट रहा जिसकी वजह से मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल बहुत हिट गया। ठीक है, तो चलो नाउ लेट अस सी व्हाट वेर द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस थ्योरी। जो सबसे बड़ा इनका हिट रहा वो ये रहा बच्चों कि यहाँ पर जो उन्होंने गैप छोड़ रखा था अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज जो थी वो उन्होंने कहीं ना कहीं पर मेंशन की हुई थी, जो प्रेडिक्ट की हुई थी। एंड व्हेन दोज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, ठीक है, व्हेन दोज एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड दिस सेम प्रेडिक्शन वर फाउंड इन दोज एलिमेंट्स। जैसे कि यहाँ एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने जो जगह छोड़ रखी थी उसको नाम दिया था इका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन के नीचे जो जगह छोड़ रखी थी उसको नाम दिया था इका सिलिकॉन। ठीक है, और जो भी प्रॉपर्टीज ले लो, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो या एटॉमिक रेडियस ले लो, जो भी प्रॉपर्टीज इन्होंने प्रेडिक्ट कर रखी थी इका एल्यूमिनियम के बारे में और इका सिलिकॉन के बारे में, वो आज के दौर में बच्चों ये इका एल्यूमिनियम की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो गैलियम में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर अभी गैलियम है आज के दौर में, और इका सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज उन्होंने प्रेडिक्ट कर रखी थी वो सारी प्रॉपर्टीज जर्मेनियम में मौजूद है। तो यहाँ जर्मेनियम है आज के दौर में। ये टेबल तब का है जब मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल डिस्कवर हुआ था। ठीक है, चलो ना लेट अस सी व्हाट वर द ड्रॉबैक्स। ठीक है, इतने सारे हिट्स गए हैं इसके, तो क्या ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से ये मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल जो है तो फेल कर गया। फेल नहीं बोल सकते, व्हाट वर दी डीमेरिट्स। ठीक है, तो सबसे पहला डीमेरिट जो था इनका वो ये था कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया उन्होंने। ठीक है, ग्रुप्स डिसिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप कैसे कर दिया, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। ठीक है, ये सिमिलर एलिमेंट्स है, इनको ग्रुप कर दिया उन्होंने कॉपर और सिल्वर के साथ जो डिसिमिलर है। ठीक है, सो डिसिमिलर ग्रुपिज्म कर दिया उन्होंने यहाँ पर। सेकेंड एक बात और कर दी कि सिमिलर एलिमेंट्स को अलग अलग कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ प्लैटिनियम यहाँ है और गोल्ड यहाँ है, सिमिलर एलिमेंट्स है ना, सिमिलर एलिमेंट्स को अलग कर दिया। सो डिसिमिलर एलिमेंट्स को ग्रुप कर दिया और सिमिलर एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया, ये भी उनका एक ड्रॉबैक रहा। तीसरा एक ड्रॉबैक ये रहा उनका पोजिशनिंग ऑफ हाइड्रोजन। ये तो अभी भी एक बहुत बड़ा डिबेट है। ठीक है, कि मतलब हाइड्रोजन की एक्चुअल पोजीशन कहाँ होती है, जैसे ये मेटल है या नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल है तो 7th ग्रुप में होना चाहिए, वो यहाँ क्या कर रहा है, ये अभी भी इस पर एक भारी डिबेट है। तभी भी ये बवाल था, अभी भी ये बवाल है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। बट मोर ओवर पोजिशनिंग ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोजन हमको 3 फॉर्म्स मिलता है, जैसे H1, H2, H3। सो अकॉर्डिंग टू द रूल व्हाट मेंडलीफ हैज स्टेटेड, व्हाट वाज द रूल ऑफ मेंडलीफ के ही हैज अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वेट ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि H1 यहाँ आएगा, फिर H2 यहाँ आएगा, फिर H3 यहाँ आएगा, अकॉर्डिंग टू हिज रूल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज रूल H1 शुड कम हियर, H2 शुड कम हियर एंड H3 शुड कम हियर। बट यहाँ उन्होंने ऐसे नहीं किया, हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप्स को उन्होंने यहीं पे रहने दिया। ठीक है, अपने ही रूल को खुद फॉलो नहीं किया। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक। नेक्स्ट थिंग विच वॉज काउंटेड इन द ड्रॉबैक वॉज दैट कि यहाँ पर उन्होंने जैसे बताया मैंने आपको, ही हैज प्लेस्ड ऑल द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक वेट निकल के एटॉमिक वेट से ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ निकल पहले आना चाहिए, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए, तो पर उन्होंने ऐसे नहीं किया, यहाँ कोबाल्ट को पहले ले लिया, निकल को बाद में ले लिया। वैसे यहाँ पर भी टेरुलिनियम, ठीक है, टेरुलिनियम और यहाँ पर आयोडीन।
आयोडीन का एटॉमिक वेट टेरुलिनियम के एटॉमिक वेट से कम है, बट फिर भी टेरिलियम को उन्होंने पहले ले लिया और आयोडीन को बाद में कर दिया, मोलिब्डेनम के साथ टेरुलिनियम को ले लिया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ मैच कर रही थी। तो एंडिंग में क्या हो गया, धीमे धीमे ये क्या करने लगे, अपने ही रूल्स को फॉलो करने लगे, फॉरगेट करने लगे, अपने ही रूल्स को भूलते गए और ग्रुपिज्म कुछ इस तरह कर दिया उन्होंने कि जो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे थे उनको सेम जगह पर उन्होंने इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। सो दिस वाज आल्सो दी मेजर ड्रॉबैक। आफ्टर दिस स्कॉट, ठीक है, वन साइंटिस्ट, ही केम एंड ही डिस्कवर्ड द नोबल गैसेस, ठीक है, जो आज के मेनलीफ पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर 0 ग्रुप में यहाँ पर सारे नोबल गैसेस को दिखाया गया है। आपके एनसीईआरटी में भी यहाँ पर 0 है फर्स्ट ग्रुप के पहले और यहाँ पर सारे नोबल गैसेस को प्लेस कर दिया गया है। सो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस, ठीक है, एज स्कॉट हैज डिस्कवर्ड द नोबल गैसेस, ही गॉट अ नोबल प्राइज, ठीक है, और मेनलीफ को नहीं मिला, ठीक है, बट मेनलीफ गॉट मोर इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, उसको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मिली वो ये मिली कि एक एलिमेंट है 101, ठीक है, उसको इसका नाम दे दिया गया मेंडेलियम, ठीक है। सो जो एलिमेंट है 101 वो जब कभी भी पढ़ा जाएगा उसके बारे में, जब तक ह्यूमन बीइंग्स है, जब तक पीरियोडिक टेबल है, जब तक पीरियोडिक टेबल की स्टडी होगी, दैट 101 एलिमेंट विल बी स्टडीड एज मेंडेलियम, ठीक है। सो दिस वाज वन सक्सेस टू हिम कि उसके नाम का एक एलिमेंट पड़ गया, ठीक है। इसके बाद आए मोस्टली, ठीक है, जिन्होंने हमें बताया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और उसके बहुत सारे फॉर्म्स है जो है हमारा नेक्स्ट वीडियो। सो वी विल स्टडी अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।